Guru Dronacharya taught his student Arjun in Mahabharata, target your goal. Focus bird's eye rather than focusing the whole bird. Good afternoon, everyone. Goal is an important aspect of life. It is the golden opportunity in adolescence leading to success. It says, get out and live successfully. So you all must be wondering कि आज मैं गोल की बात क्यों कर रही हूँ. Today we will be talking to our budding stars who are still in dilemma in choosing their career options. So आज सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही फेमस करियर काउंसलर हमारे साथ हैं. आज हम बच्चों को उनके करियर ऑप्शंस के बारे में बताएंगे. जो बच्चे आज तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें कौन सा फील्ड ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा करियर ऑप्शन उनके लिए बेस्ट रहेगा, हमारे इस वेबिनार का मकसद ही कुछ ऐसा है. ऑल्दो PPS has always been extending its support and guidance to all our children. So how can we keep this stone unrolled? Miss Ambika Vasudev, our career expert. Welcome, ma'am. Thank you. She is certified as Global Career Counselor by ICEF, University of California. Under her guidance and counseling, many students got their admission in different universities in India as well as abroad. So now she has wrote one book. She is an author of best-selling book, Career on Mars. We always talk about the career, but ma'am, I think most of our students, they don't know basically what career is. So what is career? Thank you so much for the introduction, and this is one of the most important questions that you have asked at first, क्योंकि without knowing what career is, हम jump नहीं कर सकते career options पे और उन तरीकों से जैसे हम college admissions के बारे में बात करें. So it's important for us to understand what career is. Career is not just the work that we do to earn our living. It's much more. Basically, careers shape our life. कितना टाइम हम अपनी हॉबीज के लिए निकाल सकते हैं, कितना टाइम हम अपनी फैमिली के लिए निकाल सकते हैं, दिन भर में किस तरह के लोगों से हम मिलेंगे, कैसा लाइफस्टाइल होगा, कैसी एयर हम ब्रीथ करेंगे, ये सब बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हम कौन सा करियर चूज करते हैं अपने लिए. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है करियर को ध्यान से चुनें और ऐसे करियर्स में आगे बढ़े जिसमें आपको ना तो हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट मिले, प्लस आपके लिए वो आपको इनफ टाइम दे पाए अपनी हॉबीज और अपने पर्सनल प्रायोरिटीज को भी परस्यू करने का. Ma'am, I have got so many questions from my students as well as the students from outside. But उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे पंचशील का YouTube चैनल है, Facebook पेज है, and we have a beautiful website also. Please subscribe our YouTube channel, follow and like our Facebook page, as well as don't skip to visit our website. So please हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करिए. And ma'am, my next question to you is, as the students, they want to know what are the new age career options available nowadays. Yes, that's very important. करियर्स बहुत तरह के हैं. आई नो कि बच्चों को एज अ काउंसलर व्हेन आई मीट 2 to 3 पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एवरी डे, तो ये क्वेश्चन मैं उनसे पूछती हूँ कि हाउ मेनी करियर ऑप्शंस डू यू नो. तो मुझे आज तक मैक्सिमम जो ऑप्शंस लोग बता पाए हैं दैट इज 17. और आई रियली वांट टू शेयर दैट द टाइम्स ऑफ इंडिया रिसर्च सेज दैट द नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल टू अ हाई स्कूल स्टूडेंट to choose from is 75,552. अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे कौन से करियर ऑप्शंस हैं. आजकल न्यू एज, आप स्पेशली आफ्टर कोविड, देयर इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द वे वी लुक एट करियर्स. साइबर सिक्योरिटी, डिजाइन, स्पेस एंड स्पेस स्टडीज, सोशल वर्क और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस. इंजीनियरिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी and a lot of options are available to a high school student. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप रिसर्च करें, अपने स्कूल काउंसलर से डिस्कस करें, और नहीं तो एक्सटर्नली जहाँ पर भी आप ट्रस्ट करते हैं, जिनसे भी आपको लगता है कि एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सकती है, उनसे कनेक्ट करें बिफोर यू
actually get into a career. Very true, ma'am. But do you think class 10 student is too young to select his career or subjects? Because it should be chosen after class 12th, please. So yes, this is very right that you said कि एक 10th class का बच्चा बहुत छोटा होता है for him or her to take a decision regarding their careers. और एज अ पेरेंट मैंने देखा आजकल पेरेंट्स एक स्टेटमेंट बहुत कॉमन स्टेटमेंट है जो यूज़ करते हैं कि हमने अपने बच्चों को फ्रीडम दी है टू मेक चॉइसेस और हम उनके साथ हैं, बस हम ये चाहते हैं कि वो खुश रहें, दे शुड बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ. बट आई रियली सजेस्ट पेरेंट्स कि आपको वो फ्रीडम के साथ साथ में उनको एक सपोर्ट सिस्टम भी देना है, एक सही गाइडेंस भी देनी है, बिकॉज एज अ स्टूडेंट उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है दैट दे कैन मेक दैट चॉइस. और जहाँ तक बात रही कि कौन सा वक्त है सही करियर चूज़ करने का, आई अगेन गो बैक एंड से दैट क्लास 10th इज़ एक्चुअली द राइट टाइम, क्योंकि आपके चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली प्लान किए जाते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको कल को स्कॉलरशिप्स लेने में हेल्प करेंगी या आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगी ताकि चांसेस ऑफ एडमिशंस दे गेट हाई इन यूनिवर्सिटीज़, तो वो सब डिटरमाइन हो जाता है क्लास 9th, इनफैक्ट 9th और 10th में ही. तो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स नाउ विद दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच गिव्स ऑल द लिबर्टी टू मेक अ बंडल ऑफ ऑल of your choices of your like subjects of your choices, तो आपको और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स अपने लिए चूज़ करने हैं, अकॉर्डिंगली आप उस करियर में आगे मूव कर सकते हैं. मैम, जैसे अभी आपने कहा कि क्लास 9th और 10th ऑनवर्ड्स दे शुड बी चूजिंग देयर करियर ऑप्शंस एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट आई मस्ट से कभी कभी बच्चे का इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी स्ट्रीम में होता है, बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द पेरेंट, क्योंकि पेरेंट एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है एंड दे फोर्स देयर स्टूडेंट्स, देयर वार्ड्स टू टेक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी. तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, आई अग्री. ऐसे बहुत सारे केसेस हम रोज़ डील करते हैं जहाँ पर पेरेंट्स ज़बरदस्ती पुश कर देते हैं स्टूडेंट्स को, या फिर बच्चे ने अच्छे मार्क्स ले लिए तो उनको लगता है कि नाउ दे शुड गो इन फॉर मेडिकल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग स्टडीज़. But abhi time is changing. These medical and non-medical are not the only options available for a student who has got good marks. Humanities and commerce are equally good. In fact, humanities is one of the most sought after streams nowadays with students especially who are intelligent, because जितने भी civil services, जितने भी international civil servants बच्चे आजकल जो सपना देख रहे हैं, और स्पेशली विद द लिबरल साइंस यूनिवर्सिटीज़ कमिंग टू इंडिया, अभी कोई इतना डिफरेंस रहता नहीं है. इवन अ कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट कैन लुक फॉरवर्ड टू अ टेक्निकल कोर्स. ATI University is one of the examples, which is the first liberal science university of India. So that's a good news for Indian students कि आप और पेरेंट्स भी, कि अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बच्चे ने कॉमर्स ले लिया और वो कल को टेक्नोलॉजी में भी फिर भी इंटरेस्टेड है, या साइंस ले लिया तो और वो ह्यूमैनिटीज़ के किसी डिज़ाइन के कोर्स में जाना चाहते हैं. नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग. दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल एंड वी ऑल आर हियर टू हैप्पीली एक्सेप्ट एंड acknowledge this. Okay. So apart from academics, what are other activities to focus on to safeguard their future career? Yes, now this is very important. अब ये बच्चों की पसंद का क्वेश्चन भी है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें एकेडमिक से बाहर जाने की. आई एम श्योर आप सोच रहे हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ हम कर सकते हैं, बिकॉज बच्चों को पढ़ना थोड़ा सा बोर लग जाता है. थोड़ी देर के बाद उनको लगता है कि एकेडमिक्स के अलावा कुछ क्या करें हम. तो येस, एकेडमिक्स, आई डोंट से एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका एलिजिबिलिटी वहीं से डिसाइड होता है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स हम और क्या क्या कर सकते हैं? स्पोर्ट्स में आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल, जहाँ तक भी आप पहुँच सकते हैं, इट्स वेरी गुड. यू शुड ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट. आपको किसी स्पोर्ट्स में पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, और उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी पर्सनालिटी को डेवलप ही नहीं करते, बल्कि आपकी पोर्टफोलियो को, प्रोफाइल को एक एज देते हैं. ड्रामेटिक्स है, डांसिंग है, सिंगिंग है,
कोई होस्ट लाइक होस्टिंग द सेरेमनीज, और इस तरह के कोई एरोनॉटिकल आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर की एक्टिविटीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो, और डिबेट कंपटीशन है या कोई एक्सटेम्पररी स्पीकिंग है, गो अहेड एंड पार्टिसिपेट इन ऑल दोज एक्टिविटीज़। और उसके अलावा आपके पास लीडरशिप प्रोजेक्ट्स होते हैं वेर इन यू वॉलंटियर, आप खड़े होकर अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाकर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट को, कोई सोशल कम्युनिटी सर्विस का प्रोजेक्ट पिक कर सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जिसमें आपको परफॉर्म करना है। इंटर्नशिप्स के बारे में सोच सकते हैं, डोंट थिंक दैट आई एम टू यंग। अभी बच्चे आजकल, यू सी द हाई स्कूलर्स आर कमिंग इन द वर्किंग, गोइंग एंड वर्किंग इन द इंडस्ट्री, 10-10, 15-15 दिन के लिए इंटर्नशिप्स करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं, जॉब शैडोइंग करते हैं, जिससे आपको करियर्स की भी क्लैरिटी मिलती है, प्लस आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रेंथन होता है। समर स्कूल्स को कैसे भूल सकते हैं? समर स्कूल्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की अब्रॉड से, ऑक्सफोर्ड है, जैसे ऑक्सफोर्ड का समर स्कूल इज़ वेरी फेमस, तो इस तरह के समर प्रोग्राम, समर स्कूल्स अटेंड कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। और इंटरनेशनल एक्सपोजर, और आपको ट्रैवल में भी इंटरेस्ट है तो आप ट्रैवल, जस्ट एक्सप्लोर डाइवर्स कल्चर, टॉक टू पीपल, पार्टिसिपेट, एंड दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज़ अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। आई एम श्योर इसमें बहुत मज़ा आया होगा बच्चों को इस आंसर को सुनने में। मैम, जैसे अभी आपने कहा कि अगर वो बाहर और अदर एक्टिविटीज़ अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स करते हैं तो उनका प्रोफाइल स्ट्रेंथन होता है, तो हाउ कैन अ चाइल्ड मेक हिज प्रोफाइल मोर स्ट्रॉन्ग? यस, सी पर्टिकुलर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दैट द एडमिशन पैनलिस्ट, दे आर लुकिंग फॉर द डेप्थ नॉट द ब्रेड्थ। तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर लूँ, आप कम कॉम्बिनेशन पिक करें। लेट्स से अगर 9 एरियाज ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस है, उसमें से आपको 3-4 में ही इंटरेस्ट है, तो आप उन्हीं 3-4 को लेकर उसमें अपने डेप्थ मीन्स आप उसमें अच्छे काम करें। अगर आपको कम्युनिटी सर्विस में इंटरेस्ट है तो बहुत सारे NGOs हैं जहाँ पर आप जाकर आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे स्कॉलरशिप्स पे ध्यान रखें। जनरली बच्चे पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन जब करते हैं तो दे एम एट आइदर दे आर वांट टू गेट इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज़ और दे वांट टू बैग स्कॉलरशिप्स। तो स्कॉलरशिप्स पे भी के ध्यान से, बिकॉज स्कॉलरशिप्स के भी कुछ पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उसको ध्यान देकर आप अपनी पोर्टफोलियो को शेप कर सकते हैं, विच इज़ अनदर एंगल ऑफ लुकिंग एट इट। Ma'am, as you were telling about the scholarship, so my next question is same, like how can they secure scholarships? राइट, अब स्कॉलरशिप्स लेना किसको अच्छा नहीं लगता? स्कॉलरशिप्स लेने के 2 फायदे हैं। एक तो मम्मी पापा को कितना अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चे को स्कॉलरशिप मिला, कितना मोमेंट ऑफ प्राउड और फीलिंग ऑफ प्राइड होती है कि मेरे माय डॉटर और सन इज सो इंटेलिजेंट। और दूसरा फिनेंशियल हेल्प, यू गेट फिनेंशियल रिसोर्सेज, फिनेंशियल हेल्प। तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि स्कॉलरशिप्स को टारगेट करना, किस तरह की स्कॉलरशिप्स आप टारगेट कर रहे हैं। आर यू ट्राइंग टू ऑप्ट फॉर स्टडिंग अब्रॉड? तो उसके लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। अब तो गवर्नमेंट ने पोर्टल्स बना दिए हैं, यू कैन लुक फॉरवर्ड टू द नेशनल पोर्टल ऑन स्कॉलरशिप्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट विच इज़ ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स फॉर स्टडिंग इन इंडिया एंड फॉर स्टडिंग अब्रॉड एज वेल। उसके अलावा कंट्रीज़ हैं, देर आर कंट्रीज विच आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, लाइक जर्मनी इज़ वन ऑफ देम, कोरिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। सो यू कैन लुक एट, बिकॉज अगर आप जर्मनी को टारगेट करते हैं, यू मस्ट नो दिस लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज सीखें, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ऐसी कंट्रीज़ में जाकर पढ़ने की जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। Is there any exam or any age limit to get scholarship? डेफिनेट डिपेंड्स ऑन व्हाट कोर्स यू आर परसुइंग। जैसे PhD तो, और आपको पता ही है दैट इट इज़ टोटली फंडेड बाय द यूनिवर्सिटीज़। It is somewhere wherein you put in efforts to find out and research on a particular topic which is of national and international importance. और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएशन के लिए, या इंडिया में जैसे हम बोलते हैं ग्रेजुएशन के लिए परस्यू करते हैं, तो वो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं।
पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, डिपेंड्स ऑन द कोर्स एंड द एज और द लेवल दैट यू आर एट, अकॉर्डिंगली आप स्कॉलरशिप सीख कर सकते हैं. एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डेटा है, आई वॉन्ट टू शेयर दैट 90% ऑफ द स्कॉलरशिप्स रिमेन अनअवेल्ड फॉर वन सिंपल रीजन दैट चिल्ड्रन डू नॉट अप्लाई फॉर देम. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि स्कॉलरशिप्स वेट कर रही हैं आपका. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट ओपन योर आईज एंड वर्क टुवर्ड्स दैट. एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करें, उसके ऊपर उसको टारगेट करें और एंड यू कैन ईजिली अवेल दो स्कॉलरशिप्स. अपने पेरेंट्स को भी वो प्राइड वाला मोमेंट दे जिसमें वो प्राउड से कह सके हमारा बच्चा को स्कॉलरशिप मिला है. आई एम श्योर ऑल द स्टूडेंट्स वर लुकिंग एट इट, दे आर एक्साइटेड एंड दे आर टारगेटिंग टू फाइंड आउट द वन रेलेवेंट स्कॉलरशिप फॉर देम. इट मे हैपन कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने थोड़ा लेट हमें ज्वाइन किया हो, तो मैं एक बार मैम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि मैम मिस अंबिका वासुदेव, शी इज़ करियर कॉन्फिडेंस कोच and she is from Duende Education. She is certified as Global Career Counselor by ICEF and University of California. Under her guidance and counseling, many students have got admission in India as well as abroad. So she has wrote one book also. She is an author of best-selling book Career on Mars. And इसके साथ साथ मैं आपसे फिर एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो एंड लाइक आवर फेसबुक पेज एंड विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो. So ma'am, there are so many questions I have received from the students right now. So my next question which Ankit has given me, कि I want to choose my career in IAS. I want to become an IAS. Right. So which stream should I opt for? So first of all, there is no particular eligibility criteria which says कि आप इस stream से ही आकर आप IAS के exams दे सकते हैं. You can come and opt whether you are from medical, non-medical, commerce or humanities. ऐसा कुछ rule या fundamental कोई stoppage नहीं है यहाँ पर. But yes, if you plan to apply for or maybe appear for the examinations, IAS examinations, तो ह्यूमैनिटीज़ एक ऐसा स्ट्रीम है जो आपको हेल्प करेगा, बिकॉज उसके सब्जेक्ट्स जो हैं पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, जो आपको एग्जाम्स क्रैक करने में भी हेल्प करेगा और क्लोजली है. सब्जेक्ट्स आर वेरी क्लोज टू द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट यू विल बी डूइंग फर्दर. ग्रेजुएशन आपको करना ही होता है, दैट्स अ मस्ट बिफोर यू कैन अपेयर. और इम्पॉर्टेंट है कि आप जनरल नॉलेज पे फोकस करें. आप जितना न्यूज़पेपर्स लेटेस्ट पढ़ सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास अपडेट्स होने चाहिए. और हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंटली फोकसिंग ऑन लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योर नॉलेज ऑन द हिस्ट्री. और उसके अलावा सबसे लास्ट मोमेंट पे आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं. बिकॉज एज एन IAS ऑफिसर आपके जब वो फाइनल इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, इवन इफ यू क्वालिफाई ऑल द राउंड्स एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक वेल और आंसर दैट इंटेलिजेंट क्वेश्चन दैट दे आस्क, तो बस सारी मेहनत की वही लास्ट में जाकर गड़बड़ हो जाती है. इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर पर्सनालिटी इफ यू रियली target these civil services examinations to crack, you want to try and crack those examinations. I have received the same question from Ayush Pandey also. I hope Ayush आपके सारे queries दूर हो गए होंगे. The only thing is you have to target your goal, achieve it, and your communication skills should be improved. And my next, I have got the question from Gyanendra Thakur. Ma'am, I want to become a station superintendent. So what should I do? Okay, that's very very niche target that you have taken up. See, any subjects that you pick up, आप उसमें अच्छे से excel करें, अच्छे marks लें. इन सब सिविल जितनी भी ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं इनके एग्जाम्स होते हैं. सो यू विल हैव टू फिल अप द फॉर्म्स, appear for the examinations, qualify them, qualify the interview rounds, and then you can opt for a post. हमेशा इम्पॉर्टेंट है जब भी आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आता है तो गो टू दी ओरिजिनल वेबसाइट, लाइक जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन है. एवरी वेबसाइट, स्पेशली आफ्टर कोविड आपने देखा होगा,
ऐसे कोई बिजनेस जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब ऑनलाइन आ चुके हैं. Even the provisional stores, even the the vegetable sellers, the hawkers, they also have the online system of ordering and everything. So everything is online. Government is especially putting a lot of efforts to everything, to get everything online, and that too in such a way that it is uh, acknowledged by the society, by the people. तो आपको इम्पॉर्टेंट है, यू विल हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट नोइंग द स्टेप्स टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर चॉइस दैट यू हैव मेड. उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करना है और एग्जाम्स देना है और क्वालिफाई करके एंड यू आर गुड टू गो. जैसे हम दिन रात बच्चों से मिलते हैं, इवन टीचर्स एंड पेरेंट्स दे बोथ आर आफ्टर देम. पढ़ो, एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेना है, योर रिजल्ट शुड बी वेरी गुड, सो वर्क हार्ड डे एंड नाइट. बट देर आर सो मेनी अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम academics. So ma'am, please let us know, apart from academics, what all other activities they have to focus on to safeguard their future career. As we already discussed this, that apart from academics, what all is important, we can again talk on very important aspects. It's about the experiential learning. कि खाली academics पढ़ते हुए, especially जब बच्चों को वो पर्सनल स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं. अगर आपने देखा होगा आजकल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन से पहले द फॉर्म दैट यू फिल, द एप्लीकेशन फॉर्म is not just the name and address and the phone numbers and these basic details. They ask you a lot of questions. जैसे कि ये कोर्स क्यों करना है, why do you think this course is right for you, and why do you think that you are the right candidate for this course. इस तरह के बहुत सारे डीप क्वेश्चंस हैं. अपने लाइफ के फेलियर्स को डिस्क्राइब करो. अब अगर बच्चे ने कोई फेलियर को देखा ही नहीं है तो वो क्या कोट करेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. I still remember that as a confidence coach, when I started my career, I used to address a lot of audience, a lot of parents, and used to tell them that let your children fail. It is important for them to fail because that's how they get into that uncomfortable zone, which actually makes them comfortable to face the realities of life. Because comfortable zone is not so comfortable, I say that ways, and I totally believe in that. And so it's important to get into experiential learning. कुछ projects पे काम करें. Even if you are not able to create results, even if you fail, in fact plan to fail. It's important because these are the questions. And those children who talk about their failure experiences, who talk about those kind of experiences जो out of the box हैं. Students हमेशा बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा लर्निंग में अच्छा हो जाए. कैन यू बिलीव आई मेड वन ऑफ माई स्टूडेंट्स राइट दैट आई एम ओपन टू अनलर्निंग, and that's how he got the admission in the top university of UK, when he wrote that not only learning but I'm open to unlearning, because there are a lot of other aspects related to personality, related to your learning skills, related to your acceptability, adaptability, and that's how children grow holistically. Holistic development की ज़रूरत है बच्चों में, और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि एकेडमिक्स के अलावा उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी पर्सनालिटी और उनकी एक्सपीरियंसेस ही हैं जो उन्हें बनाते हैं. तो उनको फ्रीडम दें. उनको सारा ब्लेकले एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इफ समवन गेट्स अ चांस टू विजिट द वीडियो ऑफ सारा ब्लेकले वेयर शी टॉक्स अबाउट, शी इज़ वन ऑफ माई मेंटोर्स, एंड शी टॉक्स अबाउट कि मुझे खाना नहीं सर्व होता था by the end of the day जब तक मैं अपने फादर से ये डिस्क्लोज नहीं करती थी that what is it that I have failed at today. So every day it was important for her to share with her father that what is that one thing that she failed at, because when we fail that means we are going out of our comfort zones to try something new, right? तो failures के बारे में और experiences के बारे में आप आगे बढ़ें. Just get into those kind of activities. So बच्चों, आपने सुना. In brief, I want to say academics is always important, but with academics you should be all-rounder. You should improve all the skills. Ma'am, as board exams are approaching, class 10th and 12th, they are little stressed out, and they are having the phobia of examination. So how they should overcome that phobia? Yes,
एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो फोबिया को एक्सक्यूज बना रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है, प्लीज माइंड इट। आपको एक्सक्यूज नहीं बनाना कि बस अब तो ये कोविड था, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, मेरे क्लासेस नहीं हुए, मुझे सब्जेक्ट्स नहीं आता। we all have to come out of the excuse zone and take our own responsibility and commitment towards ourselves कि हमें परफॉर्म करना है। और एग्जामिनेशन फोबिया और एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है, वो तब हम फील करते हैं when we feel that we are not prepared, we are not confident to appear for exams। तो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि कितना इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। और प्रिपरेशन के लिए एक फंडामेंटल रूल है विच आई रियली वांट टू शेयर कि आप अपने प्रैक्टिकल शेड्यूलिंग करें, प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाएं। ये नहीं कि सुबह सुबह उठे और बोला कि बस आज रात से पहले मैं पूरा सोशल स्टडीज़ का पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट करके ही सोऊंगा, विच डेफिनेटली विल क्रिएट स्ट्रेस ऑन यू बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर समवन टू कवर अप द एंटायर सिलेबस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन वन डे। तो आप अपने सब्जेक्ट्स में, सिंस द टाइम रिमेनिंग इज लेस, it's important for you to identify the important topics in each subject और उन important topics के ऊपर आप अपने summaries create करें, maybe in your own handwriting if that's possible। और उसके अंदर भी colors को use करें, highlighter pens को use करें, ताकि revision के time आपको वो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स नहीं देखनी पड़े, which definitely will create some stress। जब मुझे भी अपने एग्जाम्स के दिन याद हैं, लास्ट मोमेंट तक लगता था कि आई डोंट नो, आई माइट फॉरगेट दिस फॉर्मूला, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपने ठीक से रिविजन किया है एंड यू आर प्रिपेयर्ड, यू विल एक्सेल एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो प्रैक्टिकल टाइम टेबल्स बनाएं और उसको फॉलो करें रिग्रेसली। इस टाइम पर नेटफ्लिक्स और अपने जितने भी ऐसी चीज़ें जो आपका फोकस डाइवर्ट करती हैं उसको अपने रूम से हटा दें फॉर दिस लेफ्ट द टाइम विच इज़ रिमेनिंग। मेडिटेशन करें, ईट हेल्दी, जंक फूड नहीं खाएं बिकॉज जंक फूड आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को रूइन करता है, लोअर डाउन करता है। तो आप फ्रेश फूड खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, और स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर कंप्लीट करें और अपने प्रोडक्टिव आवर्स आइडेंटिफाई करें, कौन से ऐसे आवर्स हैं जहाँ पर आप मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं लर्निंग के अंदर। और कंटिन्यूस लर्निंग नहीं करना, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक सम लिटिल क्विक ब्रेक्स। ये नहीं कि ब्रेक पे चले गए तो फिर उसके बाद भूल गए, कोई सीरीज स्टार्ट कर ली भूल गए कि पढ़ रहे थे, वैसा नहीं। जस्ट 5-10 मिनट्स का क्विक ब्रेक टू मेक योर माइंड अगेन एक्टिव टू रीड एंड रिटेन मोर। अपना लर्निंग स्टाइल भी आइडेंटिफाई करें। अपना लर्निंग स्टाइल एक ऐसा चीज़ है, आप अकॉर्डिंगली अपना रूम का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं विच विल हेल्प यू टू लर्न एंड रिटेन मोर इन लेस टाइम। As ma'am has advised कि you should be practical enough while learning। आपको एक साथ बहुत सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं, अपना पूरा शेड्यूल बनाएं एंड अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल यू शुड लर्न so that it should retain in your mind। And ma'am, what they can do to increase their concentration? Okay, now this is very interesting. I would like to share a small trick which I learned from my mentor Sam Cawthon। He is the founder of the Speakers Tribe और उन्होंने बहुत प्यारा सा एक तरीका बताया था which I share with all my students। तो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है and it really works। This is what they say। आप भी ट्राई कर सकते हो। फोकस के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन ट्राई करें, और मेडिटेशन एकदम कूल, काम, पीसफुल एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है लर्निंग के लिए। नॉट फॉर द ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स को हल्का सा साउंड चाहिए होता है विच हेल्प्स देम टू लर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग योर लर्निंग स्टाइल। और एक छोटा सा ट्रिक है विच आई वॉन्ट टू शेयर टू गेट टू द फोकस पॉइंट, जब आप उसके बाद लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट्स वन राइम, काइंड ऑफ अ नंबर राइम जो आप ट्राई कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं बुक लेके बैठा हूँ और मेरा माइंड कहीं और जा रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड रीड एंड रिटेन व्हाट इज रिटन इन माई बुक। तो आप आँख बंद करें और एक ये नंबर सॉन्ग ट्राई करें। दैट्स 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। लाइक दिस आप 9 तक काउंटिंग को करें और बैक काउंटिंग करें एंड यू विल सी दैट योर माइंड गेट्स डीक्लटर्ड एंड जो थॉट्स आ रहे थे, जो बहुत सारे
ऐसी चीज़ें मन में घूम रही थी वो निकल जाती हैं, बिकॉज माइंड आपको इस नंबर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, इट्स नॉट ईजी। जब आप ट्राई करेंगे तो बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत चैलेंजिंग होगा, बट आई एम श्योर अगर आप ट्राई करते जाएंगे इट विल बी ईजी फॉर यू टू डू इट, एंड दिस रियली हेल्प्स टू गेट बैक टू योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन. Ma'am, I am very happy to see this. I have just received one question from my class 6 student Abhishek Meena. He wanted to know how many hours we can study for class 6. Class 6th? Yes. Class 6th is not that कोई इतना मुश्किल वाला क्लास नहीं है, अभी आप छोटे हो. आप अगर आप 4 से 5 घंटे भी सिंसियरली अपने एकेडमिक्स को दे देंगे अपार्ट फ्रॉम द स्कूल, जिसमें आप नई भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द बुकिश इंफॉर्मेशन, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, बिकॉज आपके लिए हेल्थ और फिटनेस, गेमिंग ये भी उतनी इम्पॉर्टेंट है. कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वो आप ज़रूर रखें सो दैट योर लाइफ इज़ इंटरेस्टिंग और आपको पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा. आई एम वेरी हैप्पी कि 6th क्लास के बच्चे भी इतने इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि और इतने सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर. दैट्स रियली रियली गुड टू सी. कंग्रेचुलेशंस इन फैक्ट टू द पेरेंट्स एंड टू द चिल्ड्रन हु आर so sincere and focused for their careers. Ma'am, just now I have received one more question from Komal Jha. Is it necessary to study at night for cracking UPSC? Is it really tough exam? Yes, it is a very tough exam and very competitive in fact. और जहाँ तक रात में पढ़ने का सवाल है, it is very subjective. There are different people and everyone, God has designed every human being in a very different manner. So that really is your analysis that you have to do for yourself कि आपके most productive hours क्या हैं. For that matter, एक टेस्ट है, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो आप ले सकते हैं, जिससे आपको अपने बारे में सेल्फ एनालिसिस होगा, अपनी पर्सनालिटी का डिटेल पता चलेगा, जिससे आप ये इस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं कि रात में पढ़ना ज़्यादा ठीक है या दिन में पढ़ना. हाँ, दिन में बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन होता है. रात में थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट होता है विच डेफिनेटली हेल्प्स इन लर्निंग एंड रिटेनिंग मोर व्हेन इट कम्स टू क्रैकिंग डिफ़िकल्ट एग्जाम्स. तो रात में पढ़ना इज़ नॉट अ बैड आइडिया. आई स्टिल रिमेंबर मैंने भी बहुत जब व्हेन आई वाज द टॉपर ऑफ माय स्कूल व्हाइल आई वाज इन क्लास 12th, so I used to study during the night because I wanted that peaceful time where I don't want any noise to disturb me. So that's really a very subjective choice otherwise, but definitely it helps those people who are looking for that peaceful time to learn. मैम, जैसे अभी आपने एडवाइस किया फॉर द साइकोमेट्रिक टेस्ट, so how good are the psychometric tests and how are they helpful in shaping anyone's career? Now this is important for us to know कि ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स आप देख रहे होंगे आजकल जहाँ पर ऐसे लिखा आता है कि फ्री साइकोमेट्रिक टेस्ट. तो प्लीज़ आप उसको समझें कि वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें उन वेबसाइट्स को डेटा कलेक्ट करना होता है स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का. तो इस तरह की वो लिंक्स दे देते हैं और वो कुछ टेस्ट भी आ जाएगा, उसका कुछ रिजल्ट भी मिलेगा, बट वो कितना ऑथेंटिक है यू डोंट नो. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट वो चूज़ करें जो इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन से अप्रूव्ड हो, जिससे रिजल्ट्स आए तो उनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर आप एक्शंस ले सकते हैं और अपना फ्यूचर प्लान अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सी कि आपका जो टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो एंड द प्राइस, द कॉस्ट ऑफ दैट, आई वुड नॉट से कॉस्ट, आई वुड से इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इट्स अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट दैट यू मेक टू सेफ गार्ड योर फ्यूचर. कि एक 2,500 से 3,000 की कॉस्ट एक टेस्ट की होती है विच इज़ द ऑथेंटिक टेस्ट, which is equal to any weekend meal, a pizza meal that we would order for a family. तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर ना करें और इसको सीरियसली लें कि ऐसा ना सोचें कि ज़रूरत नहीं है इसकी और हम इसके बिना डिसीजंस ले लेते हैं, ठीक ही होगा, फेट पर छोड़कर ना डिसीजंस लें डेस्टिनी पे कि किस्मत होगी तो अच्छा करियर बन जाएगा. ऐसे बहुत सारे इंडिया में हम कैटेगरीज ऑफ डिसीजन मेकर्स को अगर देखें प्रोफेसर डिंकलेज की रिसर्च पे, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे डिसाइडर्स हैं, डिलेयर्स हैं कि खुद से डिसीजन ले लेते हैं कि मेरे लिए आई थिंक मैं सीए कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा,
प्लीज़ अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट कराएं, अपने आप को टेस्ट करें कि मेरी एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट, API, ये 3 वर्ड्स को ध्यान रखें कि एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट क्या है, उसका अच्छा से डिटेल्ड एनालिसिस करके मेरे करियर मोटिवेटर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट है मेरे करियर मोटिवेटर्स क्या हैं। किसी के लिए करियर मोटिवेटर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, रिगार्ड हो सकता है, किसी के लिए मनी हो सकता है, किसी के लिए एनालिस्ट, देयर आर सम चिल्ड्रन हु से कि मुझे मैथमेटिक्स ही करना है, मैथमेटिक्स बेस्ड ही करियर चुनना है, बिकॉज नंबर्स के बिना मैं रह ही नहीं सकता, आई वॉन्ट टू प्ले विद नंबर्स एंड आई वॉन्ट टू वर्क ऑन नंबर्स। तो इस तरह से अपने API पे ध्यान दें, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट पे, एंड देन मेक दोज चॉइसेस। और साइकोमेट्रिक टेस्ट एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे मैम ने भी सजेस्ट किया कि वी शुड चूज अवर करियर ऑन द बेसिस ऑफ API आर, तो मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि डोंट फोर्स योर वर्ड्स टू टेक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी, जो उनके इंटरेस्ट का नहीं है, जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू देयर नॉट स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू नॉट इट इज़ नॉट फॉर देयर पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट यू शुड चूज़। अपनी एक्सपेक्टेशंस को बच्चों पे थोपे नहीं, बच्चों के इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए उनका करियर डिसाइड करें, एंड इट शुड बी आई विल से कि बच्चों की सहमति से उसे चूज करें। और मैम जैसे अभी हमने देखा कि बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक पीरियड एवरीबडी इज एट होम एंड दे आर वर्किंग फ्रॉम होम and even the schools are forced to shut down, although their buildings are closed and their classes are going on online. So this made our students masters in digital work. Yes. So we have received so many questions related to this. Like Rishika wants to know that she loves gaming. Is it possible for her to pursue gaming as her career? And how beneficial and successful are such careers? Definitely, Rishika, gaming is one of the most upcoming career options that students are looking forward to. Gaming के बहुत सारे different forms हैं wherein gaming you're talking about gaming as a career. कुछ लोग तो स्ट्रीमिंग, गेम की स्ट्रीमिंग करके अपना यूट्यूबिंग करके अपना करियर बना रहे हैं, एंड वी हैव सीरियस गेमर्स दैट वेज। और उसके अलावा गेमिंग को डिज़ाइन करना, गेमिंग की प्रोग्रामिंग करना, गेमिंग के UI UX पे काम करना, उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट करियर्स हैं। एक खाली गेमिंग के अंदर ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप इसको थोड़ा और डिटेल में जाकर अपना इंटरेस्ट एरिया डिफाइन करें कि वेदर आई एम इंटरेस्टेड इन एनिमेशन, कि उस गेमिंग के अंदर एनिमेशन कैसे बनेगी, या पीछे की प्रोग्रामिंग कैसे होगी उस गेम की, या उसका एक UI UX कैसा होगा, कैसे कलर्स होंगे, कैसे ऑडियंस उसे देखेगी उस गेम को। तो गेमिंग इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी वास्ट डोमेन एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एंड मोस्ट अपकमिंग करियर ऑप्शंस दैट चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और इंटरनेशनली तो कंट्रीज लाइक कैनेडा, US, they are having specialized diplomas and degrees on animation and UI UX and motion graphics and all. तो इंडिया में भी धीरे धीरे आ रही हैं यूनिवर्सिटीज़ इस तरह के न्यू एज कोर्सेज को लेकर। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गो अ लिटिल मोर डीप इन टू इट टू एनालाइज द पर्टिकुलर एरिया इन गेमिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। आप अपने स्कूल काउंसलर से मिलें, उनसे बात करें। यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन एंड डिस्कशन। रिसर्च करें प्लीज़ ऋषिका आप इस पे और ज़्यादा। Ma'am, being a vice principal, when I interacted with my class 12th students to motivate them for their preparation of their boards, and when I asked them what their careers are, what they have thought about, some of my students, they want to become ethical hacker. Okay. So please guide us. What does it mean, ethical hacker, and is it possible for them? Is it a good career option or not? डेफिनेटली आप देखेंगे कि साइबर एवरीथिंग हैज़ कम ऑनलाइन, डिजिटल वर्ल्ड
अब वो ज़माना गया जिसमें हम अपने घर को डेकोरेट करते थे, अब ज़माना वो है जिसमें हम अपनी सोशल हैंडल्स को डेकोरेट करते हैं। कैसा मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल होगा, कैसा मेरा फेसबुक पेज होगा, यूट्यूब चैनल होगा। तो डिजिटल प्रेजेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इशू और बहुत बड़ा न्यू नॉर्मल बन चुका है। और कहीं ना कहीं हम लोग इम्पॉर्टेंट है हमें उसको समझना कि एथिकल हैकिंग एक हैकिंग अदरवाइज एक बड़ा ऐसा वर्ड है जिसमें बच्चे बहुत जल्दी इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग उनको लगता है कि बहुत चैलेंजिंग है, एक्साइटिंग है, और किसी को वॉल को ब्रेक करना, किसी की टेरिटरी में एंटर करना एक बहुत इंटरेस्टिंग जॉब होगा। और एथिकल हैकिंग डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट करियर है, लेकिन उसको हम ये पॉजिटिव साइड है, ये कोई इट्स नॉट दैट कि हम हैकिंग एक नेगेटिव साइड में होती है जिसमें आप किसी के पासवर्ड्स को, किसी को उसको हैक करके उसका अकाउंट ब्लॉक करते हैं, सीज करते हैं, मिसयूज करते हैं। लेकिन एथिकल हैकिंग वो चीज़ है जिसमें अब सपोज मेरा फेसबुक आईडी हैक हो जाता है और मेरे कुछ आईडी पे ऐसे कुछ गलत कुछ एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, तो आई नीड अ एथिकल हैकर इमीडिएटली हु कैन सेव मी, हु कैन सेव माई रेपुटेशन। बिकॉज अब सोशल मीडिया पे आपका परफॉर्मेंस क्या हो रही है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उससे आपकी सोशल इमेज बनती है। तो एथिकल हैकिंग गवर्नमेंट लेवल पे, उसके अलावा अब सोसाइटी लेवल पे भी ज़रूरत है। और साइबर थेफ्ट्स आपने देखा होगा पीछे कितने क्राइम्स थे कि बैंक कॉल आपके बैंक से पता भी नहीं चला आपको कि लाखों रुपए इधर से उधर हो गए। तो इस तरह की चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं, कौन रोक सकता है? एथिकल हैकर्स रोक सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं, एथिकल हैकर्स हैं। सो दिस इज़ डेफिनेटली द नीड ऑफ द आवर। तो बहुत इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन है जो बच्चे, और बहुत इंटेलिजेंट माइंड चाहिए इसके लिए। तो आपको बहुत अच्छे से इसके ऊपर और रिसर्च करें, कोई भी ऑप्शन मन में आता है उसको रिसर्च करें और कुछ जॉब शैडोइंग्स करें, इंटर्नशिप्स करें, किसी एथिकल हैकर से कनेक्ट करें और उनको बोले कि मुझे समर वेकेशंस में 15 दिन के लिए आप अपना पूरा कंट्रीब्यूशन मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे जो काम देंगे आई विल डू इट एंड आई वांट टू नो एंड एक्सपीरियंस व्हाट दिस करियर मीन्स। तो इस तरह से आप ज़रूरी है आपके लिए इसको जस्ट नॉट इन वर्ड, आप इसको एक्सपीरियंस करके समझें कि इस करियर का क्या मतलब। Ma'am, my next question is, what is web designing and can it be selected as a career? वेब डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन वर्ड आ गया यहाँ पर। और वेब डिज़ाइन के भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। UI UX जैसे मैंने कहा, यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस, ये भी एक तरह से डिज़ाइन का बहुत बड़ा एलिमेंट है। वेब डिज़ाइन ही सब कुछ है इनफैक्ट, अगर हम देखें तो, कि एक मोबाइल पे ऐप ओपन होती है, अगर वो उसका इंटरफेस ही अच्छा नहीं है, या आज आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और हम लोग कैसे अपने आप को पोजीशन किया हुआ है, क्या कुछ इमेजेस बैकग्राउंड में चल रही हैं, या इस तरह से ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब डिज़ाइन का एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट का पार्ट है। और वेब डिज़ाइन तो एक ऐसी चीज़ है कि इवन एक हॉकर को भी आने वाले टाइम में अपना एक वेब प्रेजेंस चाहिए होगा, एक वेबसाइट चाहिए होगा। और आप देखें रिटेल स्टोर्स ने तो ऑलरेडी ये सब कर लिया है, और ऐसे कॉमन कुछ वेबसाइट्स बनी हैं जहाँ पर लोग आते हैं अपने, अमेज़न देखिए अब ऑनलाइन शॉपिंग कितनी कॉमन है। तो वेब डिज़ाइन डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर करियर्स अगेन, राइट, because of this digital world that we are moving into. Right. So, ma'am, my next question is, if anyone wants to become a makeup artist or a YouTuber or a photographer, or as the girls are doing nail painting and they can become a nail artist also. So, is it important for them to have a degree or other diploma courses they can pursue? Yes, that's important. क्योंकि अभी इंडिया में हमारा इतना इन चीज़ों को एक फॉर्मल एजुकेशन में नहीं लिया गया है, लेकिन बहुत सारे स्पेशलाइज्ड स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। मेकअप इज़ डेफिनेटली, आप आज देखें तो मेकअप आर्टिस्ट या डॉक्टर्स से भी ऐसे ज़्यादा कमा रहे हैं, राइट। और मेरी अपनी डॉटर है 4 years की, शी इज़ सो फॉन्ड ऑफ मेकअप। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं घर जाऊंगी तो मेरा कुछ सामान बचा होगा कि नहीं, बिकॉज शी वेट्स फॉर मी टू गेट आउट ऑफ होम एंड शी catches all my things and start using। और मेकअप तो डेफिनेटली बहुत एक ऐसा, जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है ऐसे मेकअप और आपकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर इंसान को अच्छा लगना, किसको अच्छा नहीं लगता,
तो और देखें तो आप इवेंट्स वेडिंग बिल्कुल। इट इज गेटिंग टू ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. आई नो अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर इनटू मेकअप, दे आर मेकअप आर्टिस्ट्स एंड दे आर they go outdoors. It also includes travel. It includes a lot of exciting job that you do to dress somebody up, to deck somebody up. Definitely, many artists, they are freelancers also, and they do visit events and weddings. Absolutely. तो इसके लिए आप अपना साइड में कोई भी डिग्री आप कर सकते हैं फॉर यू टू फील दैट यस आई एम अ ग्रेजुएट. आप कोई भी BCom BA की कोई डिग्री आप परस्यू कर सकते हैं और साथ में एक डिप्लोमा जो आपको स्पेशलाइजेशन दे एज अ मेकअप आर्टिस्ट और एज अ नेल आर्टिस्ट. और विद एक्सपीरियंस ये सब चीज़ें पॉलिश होती जाती हैं. इट्स नॉट जस्ट कि आप इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट बिकॉज एट टाइम्स स्टार्ट इज़ द बिगेस्ट स्टॉप. तो स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे और बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है. रियली सजेस्ट कि गर्ल्स और बॉयज ऑल्सो, नाउ बॉयज आर ऑल्सो बिकॉज They can be hair artist, even makeup artists, right? even boys do Boys do hair finer artist and makeup than makeup girls, artist, by the way. right? So that ways you can look forward to these as career options. Okay. Ma'am, one of my students wants to know how can I improve my creativity skill in graphic design, and what is the scope of graphic designer? Graphic designer, as I said, that design is something which जैसे कि एक ह्यूमन के लिए, जैसे अभी हम मेकअप की बात कर रहे थे, एक फेस को इम्प्रूव की, उसके लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए, ऐसे ही समझ लीजिए डिज़ाइन, जो वेब डिज़ाइन या ग्राफिक डिज़ाइन आपके डिजिटली आप कैसे, वो आपका पेज कैसा दिख रहा है या प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन एलिमेंट दैट यू यूज़. और डिज़ाइन एक ऐसा फील्ड है जो हर जगह चाहिए और कंटिन्यूसली चाहिए. आपको रोज़ नए ब्रोशर्स, नए कुछ आप चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, यू वांट टू हैव अ सॉफ्ट ब्रोशर, यू नीड टू ऐड अ वेब पेज फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो इस तरह से ये कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ है. और डिज़ाइन के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप ऑनलाइन, कई तो फ्री सॉफ्टवेयर्स भी हैं जहाँ पर आप अपने स्किल्स को ब्रशअप कर सकते हो. एंड यू कैन परचेज द लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर्स ऑल्सो जो डिज़ाइन को इम्प्रूव करते हैं. पर्टिकुलरली एडोब के हैं, इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है एडिटिंग के लिए. तो इस तरह के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जब आप एक्सप्लोर करेंगे. और सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उन लोगों से कनेक्ट करें जो उस एरिया, सपोज ग्राफिक डिज़ाइन है तो यू जस्ट कनेक्ट टू द ग्राफिक डिज़ाइनर्स एंड आस्क देम. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो डिजिटली बहुत ईजिली. लिंक्डइन पे बहुत सारे प्रोफेशनल लोग अवेलेबल हैं. यू कैन जस्ट मैसेज देम दैट आई वांट टू नो मोर अबाउट व्हाट ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ एज अ करियर. और मुझे अगर इनिशियली एज अ स्टार्ट फ्रेशर मुझे अगर इसमें कुछ सीखना है तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे मैं काम करूं. और एंड यू आर गुड टू गो. अब तो फ़ोन में भी इतने सारे ऐप्स हैं, छोटे छोटे काम तो फ़ोन की ऐप्स में डिज़ाइनिंग के आप बहुत सारे कर सकते हो. और दिस इज़ द वे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स भी दे कम टू मी एज दे वर्क विद मी एज इंटर्न्स. और वो ऐसे ही मस्ती मस्ती में इतना सारा ब्यूटीफुल काम करते हैं और मैं हैरान होती हूँ कि क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है आजकल की जनरेशन में. तो you should definitely explore and learn more. Just now I received one more query from Harsh Singh Shekhawat. Ki if I took science stream in class 11 and I want to pursue graduation in science, so how can I choose the field of civil services? It is again civil services का तो एक ही आपको इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी ग्रेजुएशन को परस्यू करें, उसे कंप्लीट करें. वंस यू आर अ ग्रेजुएट यू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई एंड अपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस. आप अपने सेंट्रल जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है सेंट्रल लेवल पे, आप उसे अप्लाई करें, उसके लिए प्रिपेयर करें. वंस यू क्वालिफाई फिर आपके नेक्स्ट राउंड्स होते हैं उसमें. और एज आई सेड कि आप अपने जनरल नॉलेज, अपनी हिस्ट्री और न्यूज़पेपर्स, आपके पास लेटेस्ट अपडेट होने चाहिए, स्पेशली द पॉलिटिकल न्यूज़. आप उस पर ध्यान रखें. इट डजेंट मैटर कि आप साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इट रियली डजेंट मैटर. आप फोकस अगर बना के चलें तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड क्रैक दीज एग्जाम्स एंड क्रैक द इंटरव्यू राउंड्स ऑल्सो. कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी पे अगेन आई एम स्ट्रेसिंग, खाली सिविल सर्विसेज के लिए नहीं, कोई भी करियर आप परस्यू करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी पे वर्क करना उतना ही इम्पोर्टेंट है. What are the different career options in commerce without maths?
बहुत सारे, बिकॉज मैथमेटिक्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपको, यस डेफिनेटली अगर आपने एक्चुअल साइंस या फिनेंशियल एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, इस तरह के करियर्स में जाना है तो मैथ्स ज़रूरत होता है, बट अदरवाइज देर आर अ लॉट ऑफ करियर्स दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू, जैसे हॉस्पिटैलिटी है, राइट, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है। बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर भी 23 डोमेन्स हैं इसके आगे, कि आप HR में जाना चाहते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट के फर्दर डोमेन्स हैं। जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है, डिज़ाइन है, डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे फर्दर डोमेन्स हैं। कम्युनिकेशन डिज़ाइन है, UI UX डिज़ाइन है, और इंटीरियर डिज़ाइन है, राइट, बहुत सारे ऑप्शंस, अनगिनत ऑप्शंस। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितना रिसर्च करें, कितना एक्सप्लोर करें। बट अगेन करियर्स को जान लेने से बात नहीं बनती। आई अगेन वांट टू स्ट्रेस ऑन द सेम थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। आपकी API क्या है, आप अगर वो समझ सकते हैं, उसे पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो बेटर ईजियर होगा कि आप सूटेबल करियर ऑप्शन में परस्यू करेंगे। ऐसा क्योंकि आजकल बहुत टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, एंड दे स्टैंड अप एंड से कि आई एम वेरी सॉरी मैम, प्लीज़ हेल्प मी, मैं ये परस्यू नहीं कर सकता, ये वाला करियर मैं अब कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये स्टडीज़ मुझसे नहीं हो रही। इट इज़ बिकॉज कि उन्होंने सही टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं किया कोर्स बिफोर दे एंटर इनटू द कोर्स। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई योर एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट, तभी करियर्स के बारे में आगे बात करने का फ़ायदा है और जानने का फ़ायदा है। One very important and interesting question is there, ma'am. Can you please tell us how can I join NASA? I want to become a scientist. राइट, सो साइंटिस्ट ये वर्ड अपने आप में ही साइंस और रिसर्च से निकल कर आ रहा है, तो आपको रिसर्च की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एस्पेक्ट आप पिक कर सकते हैं, जैसे स्पेस इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, और इवन मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप करते हैं। यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इसरो के आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक यू हैव टू टोटली वर्क इन दैट डायरेक्शन, धीरे धीरे, बिकॉज रिसर्च इज समथिंग दैट यू मस्ट ऑप्ट फॉर। आपकी पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिफोर नासा लुक्स एट यू एंड सेज कि ओके ही इज़ द एलिजिबल कैंडिडेट। सो किस तरह की रिसर्च आप परस्यू करते हैं, इट शुड डेफिनेटली बी। अभी तो देखें आपकी मार्स पे हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और अगर जैसे आपने बताया कि मेरी बुक का नाम मैंने करियर ऑन मार्स इसीलिए रखा था बिकॉज ऑफ द यंगस्टर्स, इट टॉक्स अबाउट द 7 steps ऑफ सेलेक्टिंग राइट करियर, और विच इज़ अगेन अवेलेबल ऑन Amazon। और आप उस मार्स को वर्ड को यूज़ करने का मतलब था बिकॉज इतना मुझे खुशी हुई देखकर कि हम ऑलरेडी मार्स, टाइम इज़ वेरी नियर जब हम वेकेशंस के लिए जा रहे होंगे, जब हमारे पास एक चॉइस होगी कि यार इस बार समर वेकेशंस मार्स पे जाकर मनाते हैं। तो इट्स द टाइम इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, फास्टर देन एवर। तो आप भी अपने आप को उस स्पेस के साथ में कोऑर्डिनेट करें। Ma'am, I have received one more query from Mohit Pal. He wants to know about the esports. Okay, so that's again a very new thing, a new word, और ये इसके ऊपर ऑलरेडी अभी इट्स नॉट दैट कि ये कम्प्लीटली इवॉल्व हो चुका है या डेवलप हो चुका है, इट्स स्टिल डेवलपिंग। तो ऐसे आपको रिसर्च करना है इसके ऊपर और डिटेल में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, और देखना है कि क्या आपके API से ये मैच करता है कि आप इस स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें, और स्पोर्ट्स में भी आप कौन से स्पोर्ट्स पे टारगेट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कई बच्चे हैं जो कैरिड अवे हो जाते हैं इमोशन से या किसी ऐसी चीज़ से, और वो किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में निकलते हैं आगे, लेकिन उनका परसिस्टेंस और परसिवरेंस उनको बहुत आगे तक नहीं जाने देता, एंड देन दे फील कि काश हमने स्पोर्ट्स को ना चुनकर अपनी एकेडमिक्स पे ध्यान दिया होता। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड आउट द राइट स्पोर्ट दैट यू वांट टू मूव इनटू। तो रिसर्च करें, एक्सप्लोर करें, एंड करियर काउंसलर से, अपने स्कूल काउंसलर से मिलें और डिटेल में डिस्कस करें कि आप किस स्पोर्ट के बारे में अपने लिए पर्टिकुलरली सोच रहे हैं।
Ma'am, I have received one more query from Aditya Yadav. He wants to know about the best colleges for BBA and MBA in Delhi. ओके सी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कि एक बहुत वर्ल्ड रिनाउंड है पूरे वर्ल्ड में दिल्ली यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी दे आर वेल नोन और जैसे जैसे कि DU का शहीद सुखदेव इज़ वन मैनेजमेंट कॉलेज जिसके लिए बच्चे बहुत क्रेजी होते हैं उनको लगता है कि बस हमारा किसी तरह से ये क्रैक हो जाए BBS. एग्जैक्टली और उसके अलावा दिल्ली में और बहुत सारे नियर बाय NCR में बहुत सारे ऑप्शंस हैं बेनेट यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की एक यूनिवर्सिटी है शिव नाडर है देन दीज अशोका है OP जिंदाल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू जो कि नियर बाय है और इस तरह से एक ISBF आई वुड रियली वांट टू शेयर ISBF के बारे में क्योंकि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फिनेंस है ये बच्चों को या पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि वर्ल्ड्स टॉप 5 में आता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इसे गवर्न करते हैं और ये साउथ दिल्ली में है ISBF और यहाँ पे जो आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं 4 इयर्स के कोर्सेज हैं दे आर टोटली गवर्नड बाय आपको जो डिग्री मिलेगी वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री मिलेगी और 2 साल के बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आप वो बाकी की जो रेस्ट ऑफ योर एजुकेशन यू कैन गो एंड परस्यू इन लंदन तो दैट्स वन ऑप्शन दैट यू कैन लुक एट जो हम दिल्ली की बात करें अगर मैनेजमेंट को लेकर DTU is also बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के बारे में बताया तो आई वांट टू ऐड वन मोर कि इफ यू वांट टू परस्यू योर BBA एंड MBA इन लेस अमाउंट विदाउट स्पेंडिंग सो मच ऑफ अमाउंट so you must choose IP University of Delhi and you should give the entrance exam for IP University and there are so many colleges affiliated to IP University and you should give that entrance. Ma'am, as I think our interaction, many doubts are clear of the students and the students now they are happy to know about their career options. So यहाँ मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे Facebook को लाइक एंड फॉलो करें एंड हमारी वेबसाइट www.panchilschool.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें एंड विद दिस आई वांट टू थैंक मैम शी हैज़ गिवन अस अ वैल्यूएबल टाइम थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस गाइडेंस एंड whatever you have told to our students it will be beneficial for them. Thank you so much ma'am. It was all my pleasure. Thank you so much and all the best. Thank you.